ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਮੋਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਕੇ ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ। ਪੀਕੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। Thank you very much, Moga Saab, and welcome back our listeners. जी ਪੀਕੇ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗਾ ਬਾਇਰ ਦੀ ਐਂਡ ਸੈਲਰ ਦੀ, ਰਾਈਟ? ਯੈਸ ਬਾਇਰ ਐਂਡ ਬਈ ਸੈਲਰ ਬਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਸੀਗਾ। ਸੈਲਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਕਿ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਟੈਸਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੂਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਵਰਸ। ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪ੍ਰੈਲ मई, ਹੁਣ तक समर स्टार्ट होने वाला है या हो गया समझ लो लगभग, हालांकि मौसम नहीं दिखा रहा है चीज, लेकिन फिर भी चलो स्प्रिंग मार्केट कह लेने स्प्रिंग ਪੀਕੇ ਜੀ, मार्केट। ਲਗਭਗ 50-60 ਸਾਲਾਂ जी ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਪਲ ਲੀਫ ਨੇ ਸਟੈਨਲੀ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਮੇਚ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ जी ਬਾਅਦ जी ਆਇਆ। जी 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 मेरे घर के बाहर रेनोवेशन चल रही सी, इंटरलॉकिंग सारी चेंज हो रही सी, ट्रक्स, स्टोन्स, ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਗਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਸਭ ਖੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਮਾਈ ਕਾਟੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਟੇਜ ਸਟਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਕਾਟੇਜ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰ ਕਾਟੇਜ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਖੈਰ ਇਸ ਜੋ ਸਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੇਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੌਟੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਲਡੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਇਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਰਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਲੈਵਰੇਜ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਡਿਕੇਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਲੈਵਰੇਜ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਮੋਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਬਾਇਰ ਕੋਲ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੱਖੋਂ, this is the best time to buy the house or upgrade or invest, because ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ negotiation in the resale or ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ negotiation in the incentive from the builder, it is very rare, it is very very rare ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਸੋ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੈਪ ਇਨ ਫॉर द ਕਾਂਡੋ, ਆਪਣੇ ਕਾਂਡੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਕਾਂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਡੋ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੀਸੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ ਹੈ। 2-2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵਿਦਿਨ 2 ਈਅਰ ਇਹ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਸਾਰੀ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਰਾਈ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸੁਪਨਾ, ਇਹ ਕਾਂਡੋ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਰੀਸੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਰੀਸੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਇਰਸ ਕਿ ਰੀਲਿਸਟਿੰਗ 3-3 ਵਾਰ ਰੀਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 4-4 ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸੈਲਰਸ ਆਰ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ 2021 ਦਾ ਇਹ ਰੇਟ ਸੀ, 2022 ਚ ਉਹ ਰੇਟ ਸੀ। ਬਈ 2022 ਚ ਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੱਖ ਘਟਾਓ, ਵੀ ਜੀ 25,000 ਘਟਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੀਲਿਸਟ। ਯੂ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫॉर द सेलर्स।
विद द सेलर्स बायर्स वास्ते, तो यू शुड जस्ट कम अप। मैं अगर सीरिया की गल करा, 1,83,000 जी हैगी प्रॉपर्टी लिस्ट हो गई है, मार्केट आई पी है इस वक्त। 1 लाख, कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन 14.3% प्रीवियस ईयर से ज्यादा बढ़ चुकी है। व्हाट एल्स यू वांट? दैट क्लियरली शोज they are desperate to sell, and this is a time to hammer it and get a house, get your dream with good negotiation। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨਾ ਬਿਟਵੀਨ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗਸ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੈਵਰੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਟੂ ਬਾਈ ਹਾਊਸ। even if you can't afford a bigger house, go for a smaller house. If you can't afford a smaller house, go for a condo apartment. If you can't afford a condo apartment, 2 bedroom, go for a 1 bedroom and den. If you can't afford 1 bedroom and den, go for a 1 bedroom. But this is the time to buy. Within 2-3 years, you will come here and you will tell me, PKG, that was the best. That was the best advice ever given. Now, let me tell you about the sellers. ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰ ਹੁਣ ਵੀ 2021-2022 ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10-10 15-15 ਆਫਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ? ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੱਟ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਦੇਗਾ? कौन देगा 1 मिलियन? सपना हैगा सिर्फ है रियलिस्टिक। मैं मेरे आर्टिकल जो 25 साल पहले मैं कभी लिखा सीगा, उनने लिखा सीगा कि सेलर दे डोंट डिसाइड द प्राइस, बायर्स दे डोंट डिसाइड द प्राइस, रियल्टर कभी प्राइस डिसाइड नहीं करता, ओनली द मार्केट फोर्सेस डिसाइड द प्राइस। मार्केट फोर्सेस जो कह रही है तुसी उसके अगेंस्ट किस तरह जा सकते हो? परसों की गल है, शायद 3-4 दिन पहले दी, कोई कह रहा सीगा नहीं जी मैं तो इससे कम नहीं बेचूंगा। तो मैंने कहा फिर भगवान से प्रार्थना कर, कोई पागल पैदा होगा जिसका दिमाग खराब होगा जो तेरे मुंह मांगे पैसे दे देगा, उसको मार्केट में 1 लाख सस्ता मिल रहा है, वो नहीं लेगा, तेरे से ले लेगा वो। बस ये इस सपने के इंतजार में तू बैठा रहा। मैंने लगा कि वो लड़ पाएगा मेरे नाल, लेकिन वो हंस पे आगो। मतलब बी प्रैक्टिकल, तुम ले लोगे? अगर तुम्हारे को कोई चीज 7.5 लाख की मिल रही है, तुम 8 लाख में ले लोगे क्या? क्यों लोगे? एक तो बल्कि कहोगे 7.5 लाख से मैंने और कम देना है। तो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, अदरवाइज डोंट सेल। Otherwise, wait for 2-3 years. Let the market come up. If you really want to sell, you have to be very practical. You have to be very fair. और अदरवाइज क्या होगा? तुम अपनी प्रॉपर्टी को स्टेल कर दोगे, बदनाम हो जाएगी, और जो प्राइस उसके ऊपर मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलेगा और कम हो जाएगा। और ये हुआ है, मेरे को कई ने फोन करके बोला है, स्पेशली अभी 2-3 दिन पहले फोन आया था, पीके जी 8 महीने पहले जो आपने कहा था निकाल दो, मैंने गलती कर दी, वही वाला प्राइस दिला दो। मैंने कहा फिर तू गलती कर रहा है, अब तू 8 महीने पहले वाला प्राइस मांग रहा है, आज तो रुक जाएगा तो 6 महीने बाद आज वाला प्राइस मांगेगा। तू अभी जो प्राइस मार्केट का है इसमें निकाल दे, या मिनिमम 2 साल रुक जा। ये मैंने अभी सलाह दी पिछले 3-4 दिन पहले किसी को। जी मोगा जी पीके जी, बिल्कुल सही बात है, आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि वाकई कैसे बायर की मार्केट है, सेलर को क्या करना चाहिए, बायर्स को क्या करना चाहिए। एक एक न्यूज मैं देना चाहूंगा यहाँ पे जो कि काफी मुझे अच्छी लगी। एक्चुअली क्या हुआ है सर, 1 मई 2024 को हमारी ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन जो थी एल्बर्टा से लेके बीसी तक, बीसी के कोस्ट तक पहुंची थी, बेसिकली पैसिफिक तक। सो उन्होंने उसकी एक्सटेंशन की थी और उसकी कैपेसिटी बढ़ाई थी। सो वो कैपेसिटी बढ़ के आज की डेट में जो कैपेसिटी है वो 890,000 की है बैरल पर डे, मतलब लगभग 9 लाख बैरल जो हैं पर डे वहां एल्बर्टा से बीसी के कोस्ट तक पहुंचते हैं। अब सबसे बड़ी चीज क्या दिखाई दी उसमें, चाइना जो था 2023 तक हमसे जो लेता था, ऑयल लेता था, वो सिर्फ 7,000 बैरल पर डे लेता था, 7,000 बैरल पर डे। जब से ये पाइपलाइन खुली है, कैपेसिटी बढ़ी है, हम ज्यादा सप्लाई कर पा रहे हैं उस साइड पे, फिर वो वहां से भर भर के जाते हैं, सारे जहाज जो है वो वहीं से पानी वाले जो होते हैं उसमें भर भर के ऑयल जाता है। सो चाइना ने हमसे
इस साल जो एवरेज चल रही है उसकी, पर डे की एवरेज बता रहा हूं सर, 2,07,000 बैरल पर डे। कहां 7,000 फ्रॉम बैरल पर डे 7,000, एक साल पहले? फ्रॉम फ्रॉम 7,000 टू 7,000 टू 200,000। Oh, 207,000। सो इतना। और wow. वैसे तो सबसे बड़ा ज्यादा ऑयल तो हम यूएस को सप्लाई करते हैं, लेकिन जो वो पाइपलाइन है, जो पाइपलाइन की मैं बात कर रहा हूं, ट्रांस यूनियन की, उसका उसमें से जो ऑयल पहुंच रहा है बीसी, उसका सबसे बड़ा बायर चाइना है, क्योंकि वो 207,000 में पहुंच गया है। उस पाइपलाइन से यूएस जो है 173,000 के करीब खरीदता है बैरल पर डे। हमारे पूरे कनाडा से तो यूएस हम लगभग 5 मिलियन बैरल देते हैं सर, बहुत बड़ा हम सप्लाई करते हैं। ऑलमोस्ट 60% के करीब ऑयल हम सप्लाई करते हैं यूएस को। सो वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं सिर्फ पाइपलाइन की बात कर रहा हूँ। इस पाइपलाइन से निकलने वाला जो ऑयल है, उसका सबसे बड़ा बायर जो है वो चाइना बन गया है अब। सो विच इज रियली नाइस। और भी निकलते जा रहे हैं, और भी कई कंट्रीज हैं जो ले रही हैं। अब जापान ले रहा है वहां से, साउथ कोरिया ले रहा है, ब्रुनी दे रहा है, इंडिया भी ले रहा है इससे कनाडा से उस थ्रू जो जा रहा है। सो कई और कंट्रीज हैं जो ये वाला ऑयल लेती हैं, क्योंकि हमारी कैपेसिटी लगभग 900,000 के करीब की है। सो वो भी बीच बीच में सब रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हमारा वहां का भी वो थोड़ा सा मार्केट जो है खुलनी शुरू हो गई है हमारे लिए। अदरवाइज सिर्फ यूएस था जिसको हम बेच रहे थे। अब ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन की वजह से हमारी मार्केट थोड़ी वास्ट हो रही है। हम चाइना तक को भी दे रहे हैं, इंडिया को दे रहे हैं, जापान को दे रहे हैं। सो अब हम फैलने शुरू हो गए हैं। हमें कैपेसिटीज और बढ़ानी पड़ेगी ये पाइपलाइंस की। देश हैं जो खरीदने को तैयार हैं, और भी लेंगे वो, लेकिन हम सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं इतनी, कि हमारे पास पाइपलाइंस नहीं है, हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। सो हमें बहुत जरूरी है कि हमारी पाइपलाइंस ज्यादा और डेवलप हो। पीके जी, हमारा भी टाइम खत्म होता जा रहा है, आप कुछ एंड में कहना चाहेंगे? बस मैं बताना चाहूंगा कि ये मार्केट इसका बड़ी जबरदस्त एक डिफरेंट सा मोड़ ले चुकी है, जिसके लिए आपको सोच समझ के ध्यान से फैसला लेना बड़ा जरूरी है। फैसला तो लेना ही है। अगर आप सोते रहोगे तो सोते ही रह जाओगे, चाहे आप सेलर हैं, चाहे आप बायर हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हैं। दिस इज द मार्केट, दिस इज द मार्केट वेयर यू टू वेक अप एंड टेक ए डिसीजन। कैसे? नो ऑब्लिगेशन मीटिंग में से कर सकते हो आप। मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, 647-299-4757 स्क्रीन पे आ रहा है। और यू कैन विजिट teamsavarwal.com, मेरे से अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल सकते हैं। नो कॉल्स प्लीज, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कॉल्स। मेरा फोन फॉरवर्ड रहता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है जवाब देना। तो टेक्स्ट मैसेज में बड़ी जल्दी आपको जवाब वापस आता है, मेरे से या मेरे ऑफिस से या मेरी असिस्टेंट से। तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिए 647-299-4757 में, एंड विल गेट बैक टू यू। वील हैव ए नो ऑब्लिगेशन मीटिंग, एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन गो अहेड। जी मोगा सर। जी पीके जी, थैंक यू वेरी मच। ते किसी तरह की भी अगर तुहानू इंश्योरेंस की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो मार्केट अजकल, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे ऊपर आ गई है, अज तो थले गई है मार्केट, सबनू पता होएगा जो मार्केट फॉलो करते हैं। डाउ जोन काफी 700-800 पॉइंट थले गया, लेकिन बाकी काफी दिनों तो ऊपर आ रहा है, और धीरे धीरे मैनू ऊपर ही आने की उम्मीद हैगी है स्टॉक मार्केट की, क्योंकि धीरे धीरे सारे टैरिफ वाली चीज़ां ने जड़ियां समझौते होंदे चले जाएंगे, एंड स्लोली मार्केट ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। तो आ टाइम है मार्केट घुसन का। बट ये चीज़ नहीं है कि किसी भी चीज़ नू खरीद लो, हर चीज़ ऊपर नहीं जाएगी। सो बड़ा सोच समझ के खरीदने वाली चीज़ है। सो अगर तुसी किसी तरह की भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो मैनू कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और इंश्योरेंस रहे हो तो भी मैनू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा फोन नंबर स्क्रीन पे आ रहा है जी, 6472851007। थैंक यू वेरी मच पीके जी, तुसी आए मेरा साथ देता। थैंक यू मोगा साहब, अगले बुधवार फिर मुलाकात होएगी जी। बिल्कुल जी, अगले बुधवार ऐसे ही मिलांगे जी। मेरी तरफ भी सब नू प्यार भरी सत श्री अकाल।